आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, His Excellency Governor of Maharashtra, respectable Sri Bhagat Singh Koshiyari ji, my colleague from Union Cabinet, respectable Dr. Jitendra Singh ji, Chief Minister of Maharashtra Sri Eknath Shinde ji, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय डॉक्टर मिसेस विजया लक्ष्मी सक्सेना जी, डॉक्टर सुभाष चौधरी वाइस चांसलर और उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका नागपुर का सांसद होने के नाते इस ऑरेंज सिटी में, जिसको टाइगर कैपिटल कहा जाता है, उसमें आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी 100 साल पूरी कर रही है। उसी समय ये इंडियन साइंस कांग्रेस हमारे अनुरोध पर नागपुर में आयोजित हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण साइंस कांग्रेस है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 उद्दिष्ट सामने रखे हैं। पहला उद्दिष्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत का है और दूसरा उद्दिष्ट जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। आप सबको पता ही है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 to 54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, 22 to 24% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। आज भी हमारी 65% पॉपुलेशन गांवों में बसी है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनके विकास के लिए साइंस का उपयोग करके, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें जीडीपी ग्रोथ रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया में बढ़ानी होगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित इस नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें नए प्रकार से इसकी रचना करनी होगी। आई ऑलवेज टेल टू द पीपल 2 important philosophies. One is conversion of knowledge into wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. At the same time, no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Exactly, I feel that this is the big challenge to all of you. We need research, need-based research, region-based research, and the availability of the raw material. That is to be most important thing where our research is very important. And at the same time, we need to reduce our import and increase our export. जो import कम करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसी से आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। Ethics, economy, ecology and environment. Three important is, these are the important pillar of the Indian economy. और इसमें इकोनॉमी का विकास करने के लिए विज्ञान के बिना कुछ होगा नहीं। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द जीडीपी contribution from the rural, agriculture and tribal India is negligible. Without increasing the growth in the agriculture and rural and tribal India, we cannot make Atmanirbhar Bharat. And that is most important thing for all of you. The most important thing is we need appropriate research. At the same time, the economic viability is very important. Proven technology, economic viability, availability of raw material and marketability, these are the important things. Today I feel that this is the time and big challenge for all of you, that how we can make India strong in agriculture, rural and tribal area.
The other sectors are equally important. I am really happy today the Nagpur University is completing 100 years. At the same time, I am also the student of this university, and that is to be a great pleasure and pride for me. Today, the Indian Science Congress, it is really a huge event which is going to inspire and motivate to the scientists to make new India and making futuristic technology for sustainable growth in the all fields. मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके प्रयासों से प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और वर्ल्ड की सबसे सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने का, उसका आधार रिसर्च है, विज्ञान है। और आप सबके एप्रोप्रिएट रिसर्च के आधार पर हम दुनिया की महाशक्ति बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। यही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन एक कॉन्फ्रेंस से आप सबको मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।